Dear kids of grade 3, today's lesson is Message in a Bottle. In this video, we will read the lesson, know the words meaning and translate into Urdu. So please, first of all, take out your books, put your finger on the title of this lesson and listen to me carefully. Let's start. Message in a Bottle. बोतल में एक पैगाम. Words to know. जानने के अल्फाज. Decided का मतलब होता है फैसला करना. Made up one's mind about something. किसी चीज़ के बारे में एक बार जहन बना लेना. Difficulty से मुराद मुश्किल या रुकावट. Something not done easily. कोई ऐसी चीज़ जो आसानी से ना हो सके. Discovered, found, uncovered, learned about. Discovered का मतलब होता है दरियाफ्त करना या पाना. Foolish, not clever, not bright. Foolish का मतलब होता है अहमक, होशियार ना होना या रोशन ना होना. मैसेज से मुराद पैगाम. A short letter or words sent from one person to another. कोई मुख्तसर खत या अल्फाज जो एक शख्स किसी दूसरे की तरफ भेजे. Scampered, ran quickly and lightly. Scampered से मुराद जल्दी से भागना. Wondered से मुराद हैरान होना. Thought about with curiosity and doubt. किसी चीज़ के बारे में सोचना तजस्सुस और शक के साथ. A long time ago, two children, Afia and Hassan, lived in a small fishing village by the sea in the south of Pakistan. बहुत अरसा पहले आफिया और हसन पाकिस्तान के जनूब में समंदर के पास एक छोटे माहीगीरी गांव में रहते थे. They were good friends and lived next door to each other. ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के हमसाए थे. Their fathers were both fishermen. दोनों के वालिद माहीगीर थे. There was no school in the village. गांव में कोई स्कूल नहीं था. So the children built sand castles, chased crabs, swam in the sea and climbed coconut palms all day long. बच्चे पूरा दिन रेत के किले बनाते, केकड़ों का ताकुब करते, समंदर में तैरते और नारियल के दरख्तों पर चढ़ते. One day they had a wonderful life without any worries. उनकी बगैर किसी परेशानी के ज़बरदस्त ज़िंदगी थी. One day they were playing on the beach when they found a large green bottle. एक दिन वो साहिल पर खेल रहे थे कि उन्हें एक बड़ी हरे रंग की बोतल मिली. With great difficulty, the children took the cap of the bottle. बड़ी मुश्किल से बच्चों ने बोतल के ढक्कन को उतारा. Inside it they found a piece of paper. उसके अंदर से उन्हें एक कागज का टुकड़ा मिला. What does it say? cried आफिया excitedly. आफिया ने पुरजोश होकर कहा, ये क्या कहता है? यानी उसने पूछा इस पर क्या लिखा है. I don't know, replied हसन. हसन ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता. There is some writing on it, but we can't read. इसमें कुछ लिखा है लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता. The children wondered what to do. बच्चे हैरान थे कि क्या करना है. Old बाबू the shopkeeper in the village could read. बूढ़े बाबू जो एक दुकानदार थे वो पढ़ सकते थे. He would be able to tell them what it said. वो इस काबिल हैं कि हमें बताएं ये क्या कहता है. They decided to go to him. उन्होंने उनके पास जाने का फैसला किया. They scampered along to the shop with the bottle and the paper. वो बोतल और कागज के साथ दुकान की तरफ भागे. Look बाबू, cried the children excitedly. बच्चों ने पुरजोश होकर कहा कि बाबू देखें. Look what we discovered on the beach. देखें हमने साहिल पर क्या दरियाफ्त किया है. Old बाबू took the paper from the children. बूढ़े बाबू ने बच्चों से कागज का टुकड़ा लिया. He put on his glasses and started to read. उन्होंने अपना चश्मा पहना और पढ़ना शुरू कर दिया. If you get this, said old बाबू, reading from the paper, please write to me. बूढ़े बाबू ने कागज को पढ़ते हुए कहा, अगर तुम इसे हासिल करो तो मुझे जवाब लिखो. I am David and I live in a small fishing village in New Zealand. मेरा नाम डेविड है और मैं एक छोटे माहीगीरी गांव न्यूजीलैंड में रहता हूँ. Here is my address. ये मेरा एड्रेस है. Old बाबू pointed to the address on the paper. बूढ़े बाबू ने कागज के ऊपर एड्रेस की तरफ इशारा किया.
Here is the boy's address, he said. उन्होंने कहा ये लड़के का एड्रेस है. This bottle has come all the way from New Zealand. ये बोतल न्यूजीलैंड के तमाम रास्तों से होती हुई आई है. It is a country far, far away over the deep blue sea. ये मुल्क बहुत दूर है नीले समंदर की बहुत गहराई पर. You must write to David. तुम्हें लाजमी डेविड को जवाब लिखना चाहिए. He must be a small child just like you. वो भी जरूर तुम्हारी तरह कोई छोटा बच्चा होगा. Tell him that you found his message. उसे बताओ कि तुम्हें उसका पैगाम मिल गया है. The children looked down at their feet. They looked sad. बच्चों ने नीचे अपने पाँव की तरफ देखा, वो उदास दिखाई दे रहे थे. Why are you looking so sad? asked old बाबू. बूढ़े बाबू ने पूछा, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? We cannot read or write, can we? replied आफिया quietly. आफिया ने खामोशी से जवाब दिया, हम न पढ़ सकते हैं और न लिख सकते हैं. We are foolish. हम अहमक हैं. You are not foolish at all, said old बाबू. बूढ़े बाबू ने कहा, आप लोग बिल्कुल अहमक नहीं हो. Why don't you learn? आप लोग सीखते क्यों नहीं हो? There is no school here, said हसन. हसन ने कहा, यहाँ कोई स्कूल ही नहीं है. How can we learn? हम कैसे सीख सकते हैं? I will teach you, said old बाबू with a smile. बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा. From that day, every afternoon, when the shop was quiet, the children sat with old बाबू. उस दिन से हर दोपहर को जब दुकान पुरसुकून होती, बच्चे बूढ़े बाबू के साथ बैठते. He gave them paper and pencils and he taught them. उसने उनको पेंसिल और कागज दिया और उनको पढ़ाया. Some months later, Afia and Hassan wrote a letter to David in New Zealand. कुछ महीनों बाद आफिया और हसन ने डेविड को न्यूजीलैंड में खत लिखा. He wrote back to them. उसने उनको वापसी जवाब लिखा. The months went by, the years went by. महीने गुजरते गए, साल गुजरते गए. आफिया एंड हसन स्टिल राइट टू डेविड. आफिया और हसन अभी भी डेविड को खत लिखते थे. Now they are nearly as old Babu was when he first read them the message in the bottle. अब वो तकरीबन इतने ही बूढ़े हो चुके हैं जितना तकरीबन बाबू था जब उसने बोतल में से पैगाम पढ़कर उनको सुनाया था.